آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ انتخابات کے دوران غلط معلومات پھیلانے پر قدغن لگانے اور چناؤ عمل کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے چیف الیکٹورل افسر کے جموں اور سری نگر کے دفاتر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کیے گئے قائم۔ شفاف اور منصفانہ چناؤ عمل کو یقینی بنانے کے لیے امیدواروں اور سیاسی پارٹیوں کے چناؤ اخراجات پر کڑی نگاہ رکھنے کے حوالے سے ایکسپینڈیچر آبزروروں کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں اور چناؤ عملے کے ساتھ میٹنگیں۔ مرکز کی طرف سے اب تک کشمیر وادی میں چناؤ ڈیوٹی کے لیے نیم فوجی دستوں کی لگ بھگ 300 کمپنیاں تعینات۔ اور بھارت اور یورپی یونین کی 2 روزہ علاقائی کانفرنس نئی دلی میں شروع۔ کانفرنس میں آن لائن شدت پسند بنانے کے خطرات پر کیا جائے گا غور۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے دوران غلط معلومات پھیلانے پر قدغن لگانے اور چناؤ عمل کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے چیف الیکٹورل افسر کے جموں اور سری نگر کے دفاتر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے۔ اسی طرح تمام 20 ڈپٹی کمشنروں کے دفاتر میں 24/7 کی بنیادوں پر چھوٹے سائز کے کنٹرول رومز کو فعال بنایا گیا ہے۔ جدید ترین بنیادی ڈھانچے سے لیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے مربوط کیا گیا ہے۔ چیف الیکٹورل افسر JNK کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سینٹر چناؤ سے متعلق تمام سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرے گا تاکہ سخت اور فوری کارروائی کو یقینی بنایا جائے، جس میں جھوٹی خبروں کے کسی بھی مشتبہ کیس کے خلاف کارروائی بھی شامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چیف الیکٹورل افسر نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چناؤ کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط کی پاسداری کریں تاکہ جموں کشمیر میں جمہوری عمل کے تقدس کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چناوی ضابطہ اخلاق سے متعلق خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے سی وجل کا استعمال کریں۔ JNK الیکشن ڈپارٹمنٹ نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر پورے جموں کشمیر میں 28,000 سے زیادہ غیر ضروری پوسٹروں اور بینرز کو ہٹایا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر JNK PK پولے نے محکمے کی انفورسمنٹ ونگ کو ہدایت دی تھی کہ وہ سرکاری املاک اور دیگر جگہوں پر کسی بھی صورت میں پوسٹروں، بینرز اور کٹ آؤٹس کو فوری طور ہٹائیں۔ اس حوالے سے چناؤ کمیشن نے UT میں چناوی ضابطہ اخلاق کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کے لیے ہدایات جاری کی تھی۔ ضلع شوپیان کے لیے الیکشن ایکسپینڈیچر آبزرور نے آج نوڈل افسران کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں چناؤ عمل اور الیکشن ایکسپینڈیچر کی نگرانی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع چناؤ افسر نے میٹنگ کو چناؤ اخراجات کی نگرانی، فلائنگ سکواڈز، ویڈیو ویونگ ٹیموں اور کنٹرول رومز کے علاوہ سویپ سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ چناؤ اخراجات کا صحیح ریکارڈ رکھیں اور سوشل میڈیا پر پیڈ نیوز دینے سے اجتناب کریں۔ اننت ناگ ضلع کے سبھی 7 اسمبلی حلقوں کے لیے مقرر کیے گئے ایکسپینڈیچر آبزرورز دیپ جیوتی چکرورتی اور تامل سلوم نے آج ڈاک بنگلہ کھنبل میں میڈیا کو آئندہ اسمبلی انتخابات کے حوالے سے بتایا کہ شفاف اور منصفانہ چناؤ عمل کو یقینی بنانے کے لیے امیدواروں اور سیاسی پارٹیوں کے چناؤ اخراجات سمیت دیگر اخراجات پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی تاکہ طے شدہ رہنما خطوط پر من و عمل کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی بدعنوانی کو روکا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ریلیوں، اشتہارات اور مہم کے مواد سے متعلق اخراجات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ ایکسپینڈیچر آبزرور کلگام نے آج منی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران ضلع میں شفاف اور خوش اسلوبی کے ساتھ چناؤ عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ADDC نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ضلع میں چناؤ کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا خاکہ پیش کیا۔ میٹنگ میں افسران پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنما خطوط پر من و عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ وقفہ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری۔ 24 اور 25 اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 98147 09405 7006 709 265۔ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر گاندربل عابد اقبال ملک نے کانفرنس ہال منی سیکریٹریٹ گاندربل میں آج مجسٹریٹوں اور
सेक्टोरल पुलिस अफसरों के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। इस तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया था कि तमाम मजिस्ट्रेट और पुलिस सेक्टोरल अफसरान चुनाव अमल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस मौके पर उन्हें चुनाव के जदीद तौर तरीकों, कवानीन और रहनुमा खतूत के बारे में जानकारी दी गई ताकि जिले में चुनाव के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। इस तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के मजिस्ट्रेटों और पुलिस सेक्टोरल अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी जिला चुनाव अफसर ने इस मौके पर चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत की पासदारी और चुनाव अमल में शफाफियत को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। मरकज अब तक कश्मीर वादी में चुनाव ड्यूटी के लिए नीम फौजी दस्तों की लगभग 300 कंपनियां तैनात कर चुका है ताकि वादी कश्मीर में खुश असलूबी के साथ असेंबली चुनाव कराए जा सकें। इन दस्तों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल हैं। ये सिक्योरिटी दस्ते श्रीनगर, कुपवारा, बारामुल्ला, अनंतनाग, शोपियान और पुलवामा समेत 12 अजला में तैनात किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में होने वाले चुनाव के पहले मरहले के लिए कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पहले मरहले के तहत वोटिंग 18 सितंबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनकी पार्टी ने चुनाव मंशूर में अवामी राहत को पहली तरजीह दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरी हकूक़ की बहाली के लिए हर हाल में बरसर जद्दोजहद रहेगी ताकि जम्मू कश्मीर में गैर यकीनियत और बेचैनी का माहौल खत्म हो सके। इन बातों का इजहार पार्टी लीडरों ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर वादी भर के अलावा खित्ते पीर पंचाल से आए हुए अवामी वफूद और ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए जमहूरियत परवान चढ़ती है जो अवाम की मर्जी की अक्कासी करती है। पार्टी लीडरान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेकाम की बहाली और तामीर व तरक्की के लिए काम करेगी। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और पार्टी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उनकी पार्टी कानून साज असम्बली में आईनी जमानत और लोगों की जमीन और रोजगार के हकूक़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद करेगी। हल्का खान साहब के मुख्तलिफ इलाकों में आज पीडीएफ वर्करों से खिताब के दौरान उन्होंने लोगों को रिवायती इलाकाई सियासी पार्टियों के खोखले वादों और फर्जी दावों से चौकन्ना रहने पर जोर देते हुए कहा कि वो साफ शफाफ शबिया वाले उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत इस बात की है कि लोग हकीर सियासी मफादात को नजरअंदाज करके जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और बहबूदी के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यूटी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपना चुनाव मंशूर जारी किया। आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का एजेंडा है कि ऐसे कश्मीरी नौजवानों जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है को ख़त्म करने और उन्हें रिहा कराने को यकीनी बनाया जाएगा जिनके खिलाफ कोई संगीन जुर्म नहीं है। भारत और यूरोपीय यूनियन की 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है जिसमें ऑनलाइन शिद्दत पसंद बनाने के खतरात पर गौर किया जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने इसका एहतमाम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिद्दत पसंद बनाने के मौजूदा और उभरते हुए खतरात पर गौर खौज किया जाएगा। इसके अलावा इंतहा पसंदों और दहशतगर्द अनासिर के सद्देबाब पर तबादला ख्याल होगा। भारत में यूरोपीय यूनियन के सफीर हीव डेल्फिन ने मुश्तरका इलाकाई कोशिशों पर जोर दिया ताकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के प्रोपेगेंडे के लिए इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के चैलेंज से निपटा जा सके। भारत के साबिक खारजा सेक्रेटरी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर डॉक्टर कंवल सिब्बल ने कहा कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक ऑनलाइन मतन के सिलसिले में 2 रोज़ा तबादला ख्याल सूदमंद साबित होगा। इस इलाकाई कॉन्फ्रेंस का मकसद डिजिटल हल्के में पुरतशद्दुद व इंतहा पसंदी से दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटना है। राजौरी जिले में सिक्योरिटी दस्तों ने दहशतगर्दों के एक जेर जमीन ठिकाने का पता लगाया है। सरहदी जिले के डरहाल इलाके में सगरावत जंगल में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम की जानिब से कल मुहासिरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि दहशतगर्द यहां से फरार हो गए थे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की J&K रीजनल ब्रांच ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिवीजन ऑफ यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स वेलफेयर के इश्तराक से आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग द वर्ल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के मौजू पर IIPA के सालाना मुबाहिसे की इख्तितामी कम इनामात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थीं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तबादला ख्याल करने की जरूरत को उजागर किया। तकरीब की सदारत IIPA J&K चैप्टर के वाइस चेयरमैन डॉक्टर GN कस्बा ने की। तकरीब में कई तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर जीतने वाले शिरका में इनामात तकसीम किए गए। पुलिस स्टेशन कुपवारा ने कलारूस में सड़क पर नाका लगाकर भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब बरामद करके इसे जब्त कर लिया। SSP कुपवारा शोभित सक्सेना ने नामानिगारों को बताया कि पुलिस ने नाका लगाकर एक मुश्तबा गाड़ी को रोक लिया और इसकी तलाशी ली, जिस दौरान शराब की 166 और बीयर की 12 बोतलें जब्त की गईं। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद अब्बास खान और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू की है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के सभी इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे जॉइंट नाके लगाए हुए हैं इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसे ही एक नाके पे कालारूस के पास में कल रात में हम लोगों ने एक सस्पेक्टेड व्हीकल को चेकिंग के लिए रोका था, जिसमें एक लेडी और एक उसके हस्बैंड जा रहे थे। तो जब उनकी गाड़ी की सर्च करी तो उसमें 166 बॉटल्स मिली हैं विस्की की और 12 बॉटल्स मिली थी बियर की। तो एज पर रेगुलेशंस एंड एज पर द लॉ हम लोगों ने उसमें FIR रजिस्टर करी है और बॉटल्स वगैरह सीज करी और जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन दोनों को अरेस्ट किया। राजबाग श्रीनगर में आज एक मकामी होटल को आग की वारदात में नुकसान पहुंचा। डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि इस वारदात के दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। वादी के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग व शायर स्वच्छ साहब कराल का उर्स आज इंद्र पुलवामा में अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हस्ब रिवायत ज़ायरीन दुरूद अज़कर और खदमतुल मुअज़्ज़मात की मजालिस में शामिल हुए। इस मौके पर महफिल समा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें वादी के मशहूर व मारूफ फनकारों ने स्वच्छ कराल का कलाम पेश किया। तकरीब के दौरान मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि वो भारत और पोलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 70 साल पूरे होने के मौके पर पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने दोस्त वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क और सदर अंड्रेज डोडा से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वस्ती यूरोप में पोलैंड एक अहम इक़्तिसादी साझेदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन का दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर वहां के दौरे पर जा रहे हैं और ये भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे दिन आज 2 मैच खेले गए। पहले मैच में श्रीनगर टीम ने कुलगाम को 8-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में अनंतनाग की टीम ने बडगाम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। टूर्नामेंट देखने के लिए खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज के मैच में हरदीप सिंह इश्तियाक, हातिम डार और अली मोहम्मद ने रेफरी के फराइज अंजाम दिए। फाइनल मुकाबला नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी 29 अगस्त को होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।